دوسرا باب اور اس کی 18ویں آیت سے 24ویں آیت تک۔ جی۔ اور خدا نے کہا کہ آدم کا اکیلے رہنا اچھا نہیں، میں اس کے لیے ایک مددگار اس کی مانند بناؤں گا۔ اور خدا نے کل گشتی جانور اور ہوا کے کل پرندے مٹی سے بنائے اور ان کو آدم کے پاس لایا کہ دیکھے کہ وہ ان کا کیا نام رکھتا ہے۔ اور آدم نے جس جانور کو جو کہا وہی اس کا نام کہا۔ اور آدم نے کل چوپاؤں اور ہوا کے پرندوں اور کل گشتی جانوروں کے نام رکھے، اور آدم کے لیے کوئی مددگار اس کی مانند نہ ملا۔ اور خدا نے آدم پر گہری نیند بھیجی اور وہ سو گیا، اور اس نے اس کی پشتوں میں سے ایک کو نکال لیا اور اس کی جگہ گوشت بھر دیا۔ اور خدا نے اس پسلی سے جو اس نے آدم میں سے نکالی تھی ایک عورت بنا کر اسے آدم کے پاس لایا۔ اور آدم نے کہا کہ یہ تو اب میری ہڈیوں میں سے ہڈی اور میرے گوشت میں سے گوشت ہے، اس لیے وہ کہلائی کیونکہ وہ نر سے نکالی گئی۔ اس راستے میں اپنے ماں باپ کو چھوڑے گا اور اپنی بیوی سے ملا رہے گا اور وہ ایک تن ہوں گے۔ یہ خدا کا کلام ہے۔ خدا کے کلام کی تلاوت پر، بائبل مقدس کی ان خوبصورت آیات پر خدا ان کی برکت ہو، آمین۔ خدا کا شکر ہو۔ تشریف رکھیں۔ جس مضمون کے تحت ہم خدا کے کلام کا آج مطالعہ کرنے والے ہیں وہ یقینی طور پر دلچسپی سے خالی نہیں ہے، کیونکہ آج کی باتیں دل کو چھو جانے والی ہوں گی۔ یہ باتیں نہ صرف شادی شدہ حضرات کے لیے بلکہ ان لوگوں کے لیے بھی ہوں گی جو امیدوار ہیں، اور یقینی طور پر آج کی یہ باتیں ہم میں سے ایک ایک کے لیے برکت کا باعث بنے گی۔ آج کا مضمون اسکرین پر آپ کے سامنے ہے۔ آئیے دو بار ایک آواز ہو کر اس مضمون کو پڑھ لیں۔ جی، پھر سے پڑھیں۔ خدا مجھ سے اور آپ سے، ہم سے کیوں چاہتا ہے کہ ہم ازدواج کو اختیار کریں؟ خدا کیوں چاہتا ہے کہ میں اور آپ شادی کے پاک اور پوتر بندھن میں بندھیں؟ یہ آج کا ہمارا مضمون ہوگا۔ باتیں دلچسپ ہوں گی، میرے ساتھ ساتھ چلیں۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ خاندانی زندگی کے حوالے سے اس مضمون کے بحاف پر برکت کو لے کر آج رات اپنے گھر کو لوٹیں گے۔ ہم جتنے خدا کے کلام کے طالب علم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم جانتے ہیں کہ شادی ایک سیکرمنٹ ہے، اور یہ ایک ایسا سیکرمنٹ ہے جسے کسی انسان نے نہیں بلکہ خدا نے خود مقرر کیا۔ شادی ایک سیکرمنٹ ہے، اور اس سیکرمنٹ کی بنیاد کسی انسان نے نہیں بلکہ خدا نے خود رکھی۔ نو ڈاؤٹ کہ والدین ہونے کے ناطے ہم پر یہ فرض ہے کہ ہم اپنے بچوں کے حوالے سے اس فریضے کو نبھائیں۔ والدین ہونے کے ناطے یہ ہم پر فرض ہے، اور میں بڑی معذرت کے ساتھ کہوں گا کہ جو والدین اس فریضے کو نہیں نبھاتے انہیں خدا کو جواب دینا ہوگا، کیونکہ کرنتھس کے مسیحیوں کو نامہ لکھتے ہوئے مقدس پالوس اپنے سامعین کو یہ کہتا ہے کہ اگر ہم اپنی بیٹی کی شادی نہیں کرتے تو ہم اس کی حق تلفی کرتے ہیں۔ بائبل میں یہی لفظ ہے۔ اگر ہم اپنے بچوں کی شادیاں نہیں کرتے اور وقت پر ان کی شادیاں نہیں کرتے، اس
फरीसे को सरंजाम नहीं देते तो हम उनकी हक तलफी करते हैं। अज़वाज में बंधना हर शख्स का हक है भाई, और मैं समझता हूं कि वालिदैन का ये फरीसा है और इस फरीसे को उनको हर हाल में पूरा करना है। अब वालिदैन ने अपना फरीसा तो निभा दिया, शादी के बंधन में बंधने के बाद अब दो फरीकैन का ये फरीसा होता है, उन पर ये फर्ज होता है कि वो अपने इस अहद को याद रखें, इसको कायम रखें और इसी की मुनासबत से जिंदगी में बढ़ते बढ़ते और बढ़ते चले जाएं। बाइबल का खुदा दुनिया के तमाम जोड़ों के हवाले से ये चाहता है कि वो अपने अपने खानदान में एक मॉडल जोड़े के तौर पर हों, ताकि छोटे लोग उनकी तकलीद करें, उनको कॉपी करें और फिर उनकी तरह अपनी अज़वाजी जिम्मेदारियों को एहसन तरीके से निभाते हुए न सिर्फ खानदान के लिए, न सिर्फ चर्च के लिए, बल्कि अपनी कम्युनिटी के लिए इफेक्टिव साबित हो सके। अच्छा, शादी के कुछ ही दिनों के बाद क्यों हालात गैर हो जाते हैं? शादी के कुछ ही दिनों के बाद हालात क्यों गैर हो जाते हैं? क्यों दोनों एक दूसरे से आर्ग्यू पर उतर आते हैं? उनके दरमियान चलने वाली बहसों तकरार, इसका कारण क्या होता है? इसकी वजह क्या होती है? और क्या वाकई इसकी कोई सेंस बनती भी है? क्यों एक सर्द जंग सी जोड़ों के दरमियान छिड़ी हुई हमें दिखाई देती? क्यों ये एहसास होने लगता है कि मेरा इंतखाब गलत था? क्यों ये एहसास तंग करने लगता है कि मेरा इंतखाब गलत था, मैंने एक गलत शख्स का इंतखाब कर लिया? और फिर क्यों शादी के चंद हफ्तों, महीनों और सालों के दौरान ही राहें जुदा जुदा हो जाती? अच्छा, मेरा चूंकि ये बड़ा फेवरेट सब्जेक्ट है, मैंने इस पर थीसिस भी लिखा, मैंने सारी जिंदगी इस पर बहुत पढ़ा है, बहुत काम किया है, इस टॉपिक पर बात करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मैंने चूंकि यूथ की क्लासेस ली हैं, मुख्तलिफ बाइबल कॉलेजेस में इस सब्जेक्ट को पढ़ाया है, इसलिए मुझे इस पर बात करना बहुत अच्छा लगता है। और मैंने इसलिए कहा कि आज की बातें बड़ी जबरदस्त होंगी, इसलिए आपकी थोड़ी सी ज्यादा तवज्जो दरकार होगी। मैं बड़ा हैरान हूं कि लोग रिश्ते में बंधे हुए जब मुझसे ये कह रहे होते हैं कि पादरी साहब, हम अपने रिश्ते पर काम कर रहे हैं। अरे भाई, कैसा काम? अच्छा, रिश्ते में बंधे हैं, अभी पूरे तौर पर बंधे नहीं कि काम शुरू हो गया। अगर शुरुआत इस तरह की है तो फिर इस रिश्ते का अंजाम क्या होगा? बहुत से लोग मेरे पास आते हैं, मुझे कॉल्स करते हैं, मुझे मैसेजेस करते हैं और कहते हैं कि पादरी साहब, हमें थेरेपी की जरूरत है, हमें थेरेपी की जरूरत है, हमें थोड़ा मुश्किल लग रहा है। और मैं डरते डरते उनसे कहता हूं कि अगर शुरू में मुश्किल है और शुरू में अगर मुश्किल दिखाई दे रहा है, निभा मुश्किल दिखाई दे रहा है, तो फिर इसका अंत क्या होगा? इसका अंजाम क्या होगा?
مجھے تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ آپ ہر ہفتے مجھے کال کر کے مجھ سے کچھ نہ کچھ ڈسکس کر رہے ہیں. اس بات کو پیارے بچوں کبھی نہ بھولیے گا کہ شادی ایک میجیکل ٹرانسفارمیشن، میجیکل قسم کی. لاجیکلی دیکھا جائے تو مرد کے لیے اکیلا رہنا اچھا نہیں. یہ میں نہیں کہہ رہا، بائبل کا خدا کہہ رہا. لاجیکلی لکھا ہے کہ مرد کا اکیلا رہنا اچھا نہیں، اور ہمارے معاشرے میں عورت کا اکیلا رہنا تو اور زیادہ اچھا نہیں. لاجیکلی مرد کا اکیلے رہنا اچھا نہیں، اور جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں یہاں اکیلی عورت کا اکیلا رہنا تو بالکل بھی اچھا نہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ دونوں کو لائف پارٹنر کی، ساتھی کی ضرورت ہے. دونوں کو، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو، دونوں کو ساتھی کی ضرورت ہے. لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ ہم ضرورت کے تحت شادی کریں. میں یہاں زور دے کر کہوں گا، وہ شادیاں جو مختلف ضرورتوں کے تحت کی جاتی ہیں وہ شادیاں کبھی کامیاب نہیں ہوتی. آپ کی شادی جو ہے وہ آپ کی ضرورت سے بالا تر ہونی چاہیے. اگر آپ نے کسی ضرورت کے تحت شادی کی ہے اور چند ہی ہفتوں اور مہینوں میں وہ ضرورت پوری ہو گئی ہے تو پھر اکتاہٹ والی صورت کا بننا تو بڑا جائز ہے. سو شادی جو ہے وہ ہمیں ضرورت کے تحت نہیں کرنی، کیونکہ ایسی شادیوں کا انجام بڑا بھیانک ہوتا ہے. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ شادی کامیاب کب ہوگی؟ اور میری دانش میں اس کا سادہ سا جواب یہ ہے کہ دنیا کی کوئی بھی شادی اس وقت کامیاب ہوگی جب مرد شوہر والا رول اور عورت جو ہے وہ بیوی والا رول نبھانے کی کوشش کرے گی. میرے لفظوں پر غور کریں. میں مرد اور عورت والا رول نہیں کہہ رہا، وہ آپ نبھا چکے ہیں. وہ مختلف قسم کا رول ہے، اس میں آپ نے من کی مرضی کی ہے، آپ اپنے من کے موجی رہے ہیں. شادی میں بندنے کے بعد اب آپ کو شوہر والا اور آپ کو بیوی والا رول پلے کرنا ہے. اور میں بڑی دلیری کے ساتھ کہوں گا، کیونکہ ہمارے پنجابی معاشروں میں شادی کے بعد بھی کوئی لڑکا اور کوئی لڑکی یہ رول نہیں نبھا رہے ہوتے، اس لیے ازدواج میں جلد ہی دراڑیں پڑ جاتی. میاں ہو کر بھی میاں والا رول نہیں، اور بیوی ہو کر بھی بیوی والا رول نہیں. کتنے جوڑے ہیں جو مجھ سے یہ بات کر چکے ہیں کہ پادری صاحب اس میں شوہر والی کوئی بات آپ کو دکھائی دیتی ہے، اس میں کوئی بیوی والی بات آپ کو دکھائی دیتی ہے؟ وہ پادری صاحب یہ آدمی منڈا بڑ بہتا ہے، اس کو سمجھائیں اب یہ منڈا نہیں ہے، اب یہ بندہ ہے، اب یہ ذمہ دار ہے، اب یہ شوہر ہے، اور اسے خاندانی ہر معاملے کو شوہر کے طور پر، ہیڈ کے طور پر، اس کے سر کے طور پر دیکھنا ہوگا. اور جب تک یہاں کے معاملات سر کے طور پر یہ نہیں دیکھے گا تب تک معاملات بگڑتے اور بگڑتے چلے جائیں. سادہ زبان میں یہ سسٹم بچوں کیسے چلے گا اگر یہ ساری کی ساری چیزیں، یہ سارے کے سارے اعضاء جو ہیں وہ اس کے کنٹرول میں نہیں ہوں گے؟ آرڈرز کہاں سے آنے ہیں؟ یہاں سے. اب آپ کہتے ہیں کہ جی ہم نے سر کی ماننی نہیں ہے.
सर की ना मानेंगे तो पैरालाइज्ड हो जाएंगे। मेरे लफ्जों पर गौर करें, पैरालाइज्ड हो जाएंगे। ये पैरालाइज्ड होने वाली हालत है जब आप यहां से सिग्नल्स नहीं पहुंचते, आप यहां का ऑर्डर नहीं मानते, जिस्म का कोई भी हिस्सा पैरालाइज्ड हो जाता है। और आज कितने ही खानदान, हमें कितने ही जोड़े पैरालाइज्ड दिखाई देते हैं। वजह क्या है? जिस्म जो है वो सर के साथ कनेक्टेड नहीं है। जिस्म जो है वो सर के साथ कनेक्टेड नहीं है। और जब तक आप सर के साथ कनेक्टेड नहीं होंगे, हरकत कैसे होगी भाई? मूवमेंट कैसे होगी? ग्रोथ कैसे होगी? आप कैसे बढ़ेंगे और कैसे तरक्की करेंगे? एक नौजवान ने अभी पिछले दिनों मुझे मैसेज किया, पादरी साहब मैंने आपसे एक बात करनी है। अच्छा, बेटियां बैठी हुई हैं, बहुत सी बातें मैं ओपनली नहीं कर सकता। मैंने कहा जी बेटा, आप जरूर मुझे मैसेज करें, क्योंकि व्हाट्सएप कॉल की मेरे पास सहूलत नहीं है। आप मुझे मैसेज करें, मैं मैसेज सुनूंगा और आपके मैसेज का आंसर कर दूंगा। अब उसने मैसेज क्या किया? पादरी साहब, प्यार पहले करना चाहिए या शादी? ये प्रॉब्लम आज के नौजवानों की प्रॉब्लम है भाई। ये उस कॉल करने वाले नौजवान की प्रॉब्लम नहीं, आज ये प्रॉब्लम हर दूसरे नौजवान की है। वो मुझसे कहें या ना कहें, लेकिन ये सवाल उनके मन में जरूर है कि हम पहले प्यार करें या कि शादी करें। मैंने उस बेटे को 2 टोक जवाब दिया, बड़ा मुख्तसर सा जवाब दिया। मैंने कहा भाई, अगर पहले प्यार कर लेगा तो फिर शादी के बाद क्या करेगा? अगर पहले प्यार कर लेगा तो फिर शादी के बाद क्या करेगा? क्योंकि शादी के बाद प्यार ही, रफाकत ही, शराकत ही, शिद्दत ही, जिद्दत ही आप दोनों को बनाए रखेगी। और अगर ये शिद्दत और जिद्दत पहले ही आपने जाया कर दी तो फिर बाद में क्या बचेगा? वो मेरी बात को समझा नहीं। कहा पादरी साहब जरा आसान करके समझाएं। मैंने फिर एक छोटे से जुमले में जवाब दिया। मैंने कहा बेटा, हक किसी का था, बाद में आप किसी और को दें तो आपको अच्छा लगेगा। हक किसी और का था और आप बाद में, शादी के बाद उसे ये हक देने की कोशिश करें, आपको खुद को ये बात अच्छी लगेगी। फिर रफाकत को समझ गया कि पैसा उनकी कहने है। शादी का मतलब क्या है? शादी का मतलब है एक दूसरे के प्यार में होना, एक दूसरे की रफाकत में होना, और फिर मर्द होने के नाते ये कहना, गौर से सुने ये जुमला, मर्द होने के नाते ये कहना, अपने साथी से ये कहना, मैं तुम्हारे बगैर भी जी सकता था, लेकिन क्या ये जीना होता? सो मुझे शादी करनी पड़ी ताकि मैं जिंदा रह सकूं। शादी के बाद किसी भी बेटी को ये कहना चाहिए कि मैं आपके बगैर जिंदा रह सकती थी, लेकिन ये मेरे लिए आसान ना होता, मैं अधूरी रहती, मैं नामुकम्मल लाइफ गुजार रही होती। मैं ये चाहती हूं कि आप मुझ पर रूल करें, मैं चाहती हूं कि आप मुझ पर इख्तियार रखें, मैं चाहती हूं कि आप मेरा सर बन जाएं, मेरे साईं और मेरे सरदार बन जाएं। सोच का फर्क है। ये 2 जुमले जो मैंने अभी दोहराए, अगर इन पर संजीदगी से गौर कर लिया जाए तो मैं गारंटी देने को तैयार हूं, दुनिया की कोई शादी कभी नाकाम ना हो।
लेकिन शादियां नाकाम क्यों होती हैं? इसलिए कि हम रीजंस ढूंढते रहते हैं, वजूहात तलाश करते रहते हैं कि कहां बिगाड़ की कोई वजह मिल जाए। और ये सब कुछ क्यों होता है? प्यार के न होने की वजह से, कबूलियत के न होने की वजह से, एक्सेप्टेंस के न होने की वजह से। यहां तो जल्दी जल्दी में कह दिया जाता है, यस आई डू, मैं ये करूंगा, मैं ये करूंगी। और मैं बड़ी दलेरी के साथ कहूंगा, अगर वाकई यहां पर खड़ा हुआ कोई मर्द इस किस्म का इकरार करता है तो फिर उसे मर्द बनकर अपने उस इकरार को निभाकर भी दिखाना चाहिए। एक बात और याद रखें भाई, आज चूंकि शादी की बात है, दुनिया की पहली शादी की बात है, रिश्ते की बात है, रिश्तों के आगाज की बात है और सैक्रामेंट की बात है। उस सैक्रामेंट की बात कर रहे हैं जिसे खुदा ने खुद मुकर्रर किया है। नोट कर लेंगे, बाइबल मुकद्दस अक्सर ये कहती है और हम अक्सर इस आयत को दोहराते हैं कि दाना औरत अपना घर बनाती है और अहमक उसे अपने ही हाथों से तबाह कर देती है। दाना औरत अपना घर बनाती है। मेरा 36-37 साल का पासवानी तजर्बा ये कहता है, घर को कायम शौहर रखता है। ये घर बनाती है, लेकिन उस घर को, उस घरौंदे को, उस घोंसले को कायम रखना इसका काम है। आपने कभी चिड़िया का घोंसला देखा है? देखा? आपको ये पता है कि चिड़िया का घोंसला कौन बनाता है? आपको पता है? ना जी, ना जी, चिड़िया बनाती है। और मैं आपको दावत दूंगा कि आप गूगल करके देख लें, मोस्टली जो घर हैं वो फीमेल बनाती है। अच्छा, हमने जानवरों को कॉपी करना शुरू कर दिया है, जबकि बाइबल का पैटर्न तो ये नहीं है। मैंने आपको कई बार सिखाया, मैंने अज़वाज पर बात की, मैंने खुदा यीशु मसीह के हवाले से 5 स्टेप्स आपको गिन गिन कर बताए और सिखाया कि किसी भी यहूदी मर्द के लिए ये फर्ज होता था, इससे पहले कि वो शादी करे उसे अपना चैम्बर बनाना पड़ता था, अपनी दुल्हन के लिए चैम्बर। खुदावन यीशु मसीह आया, खुदावन यीशु मसीह चला गया और उसने अपनी दुल्हन से ये वादा किया, कहा मेरे बाप के घर में बहुत से मकान हैं, अगर ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि अब जब वो आएगा तो वो अपनी दुल्हन को लेगा और सीधा अपने घर में ले जाएगा। तो घर बनाना तो मर्द की जिम्मेदारी है, लेकिन पता नहीं हमने कहां से इस ख्याल को ले लिया है। मैंने औरतों के बारे में तो कराची में उर्दू जुबान बोलने वालों से ये बात सुनी है, अरे भाई घरवाली घर नहीं है। लेकिन मैंने बहुत कम ये जुमला सुना है कि अरे भाई घरवाला घर नहीं है। जानवाज में सही कह रहे हैं, औरत को घरवाली कहा जाता है, मर्द को घरवाला क्यों नहीं? अच्छा, ये घरवाली है, ये बाहर वाला है। चूंकि ये बाहर वाला बन गया है, इसीलिए तो बिगाड़ है, इसीलिए तो करप्शन है, इसीलिए तो हर तीसरी शादी जो है वो दुनिया में नाकाम हो रही है। वो तुम्हारा घर ही एक नहीं, तू पर ये लोग की कारवाली ते मैं बार-बार शाबाश। ये कहां की सेंस है भाई? दोनों घर वाले और दोनों ने मिलकर घर बनाना है और दोनों ने मिलकर घर को कयाम भी बख्शना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, टाइम बहुत हो जाए।
शादी शुदा हजरात जो हैं, मेहरबानी से चंद एक बातें नोट कर लेंगे आज, और जिनकी शादियां होने वाली हैं वो भी मेहरबानी से नोट कर छोड़ो। शादी के बाद आपको जहन में रखना है कि अब आप इंडिपेंडेंट नहीं रहे, आप एक दूसरे के डिपेंडेंट हैं। इंडिपेंडेंट वाला चक्कर नहीं चलेगा कि मर्द अपने फैसले लेता रहे, औरत अपने फैसले लेती रहे। और जिन घरों में मर्द और औरत मिलकर फैसले नहीं लेते, उन घरानों में हमें बिगाड़ दिखाई देता। एक सादा सी बात मैं आपको समझा दूं, जब आप किसी जोड़े की जिंदगी में बेबरकती को देखें, जब आप किसी जोड़े की जिंदगी में बेबरकती को देखें, तो उसकी और लाखों लाख रीजंस हो सकती हैं, लेकिन एक बड़ी रीजन समझ जाया करें, इनमें इत्तेफाक नहीं है। बरकत क्यों नहीं है? इसलिए कि इनमें इत्तेफाक नहीं है। क्योंकि हमारे सयानों का कौल क्या है? इत्तेफाक ही में बरकत है। और न्यू टेस्टामेंट में ये लिखा है कि अगर दो किसी एक चीज के लिए मुत्तफिक हो जाएंगे तो वो काम उनके लिए दो, सिर्फ दो किसी एक काम के लिए मुत्तफिक हो जाएंगे, वो काम उनके लिए हो जाए। तो आप इंडिपेंडेंट नहीं भैया, आप डिपेंडेंट हैं। दूसरी बात, शादी के बाद आपको होलनेस के तजर्बे को समझना होगा। आप दोनों हैं तो आप मुकम्मल हैं, आप दोनों हैं तो मुकम्मल हैं। आज ही के हवाले में यह बात लिखा है, कहा कि अब से तुम दो नहीं बल्कि एक हो, होल हो, मुकम्मल हो। ये होलनेस का तस्वुर जो है वो याद रखना है कि हम दोनों एक हैं तो हम मुकम्मल हैं, और अगर दो होकर भी हम दो हैं तो फिर मुकम्मल नहीं। तीसरी बात एक और याद रखें, मैंने शुरू में भी कहा कि शादी के बाद लड़की और लड़का नहीं बनना है, वो स्टेज चली गई। मर्द और औरत भी नहीं बनना, वो भी स्टेज चली गई। शौहर और बीवी बनना। आप शौहर और बीवी हैं। जब लोग आपको इकट्ठा देखते हैं तो वो मर्द या औरत नहीं कहते, बल्कि वो आपको मियां और बीवी कहते। अच्छा देखो, दुनिया में लोगों ने तशरीहात भी बड़ी अजीब अजीब सी की हुई। लोग पार्टीज में अपने साथी का इंट्रोडक्शन करवा रहे होते हैं और कहते हैं, सर ये मेरी मिसेज है। बाइबल में तो ऐसा कोई तस्वीर नहीं है। सर जी ये मेरी मिसेज है। कभी आपने किसी पार्टी में ये सुना कि किसी लड़की ने हाथ पकड़कर अपने शौहर को अपने बॉस के पास लेकर गई हो और कहा हो कि सर ये मेरा मिस्टर है? मेरे ख्याल को समझे मैं क्या कर रहा हूं। अरे भाई, आप ये क्यों कह रहे हैं कि ये मेरी मिसेज हैं? आप ये क्यों नहीं कह रहे कि ये मेरी वाइफ हैं, ये मेरा बेटर हाफ है, ये मेरा सब कुछ है? आप इंट्रोडक्शन ही अजीब से करवा रहे हैं, जिसकी कोई सेंस ही नहीं बनती। आप ये कहते हुए क्यों डर रहे हैं कि ये मेरी बीवी है? मिस्टर और मिसेज, है ना? ये अंग्रेजी जुबान से हमने सब कुछ लिया। यहां पर लफ्ज बीवी इस्तेमाल किया गया है, और हमें अपने साथी को बतौर बीवी के दूसरों के सामने पेश करना। एक और बात याद रखें, शादी के बाद आपको एक दूसरे की जिम्मेदारी लेनी है।
آپ کو ذمہ دار بننا ہے، آپ کو کیئرنگ بننا ہے، لوننگ بننا ہے، آپ کو کیئر کرنی ہے ایک دوسرے کی۔ اور جب تک آپ کیئر نہیں کرتے، آپ پیار نہیں کرتے، کوالٹی ٹائم ایک دوسرے کو نہیں دیتے، تب تک آپ کے ازدواج میں وہ چاشنی اور وہ مٹھاس نہیں آتی جو آنی چاہیے۔ یہ مٹھاس اس وقت آئے گی جب آپ پیار دیں گے اور پیار لیں گے، رفاقت رکھیں گے، اور پھر ایک دوسرے کی رفاقت سے لطف اندوز ہوتے رہیں گے۔ ایک اور بات یاد رکھیں، ہمیں ایک دوسرے کو پیار کرنا ہے، ایک دوسرے کی پرسنالٹی دیکھ کر نہیں، جاب دیکھ کر نہیں، گاڑی دیکھ کر نہیں، بنگلہ دیکھ کر بھی نہیں، روپیہ پیسہ دیکھ کر بھی نہیں، وجاہت دیکھ کر بھی نہیں۔ ہمیں ایک دوسرے کو پیار کرنا ہے ایک دوسرے کی خوبصورتی دیکھ کر بھی نہیں، کیونکہ وائز کی کتاب میں لکھا ہے کہ حسن دھوکا اور جمال بے ثبات ہے۔ حسن دھوکا اور جمال بے ثبات ہے، اور یہ وہ چیزیں ہیں جو پر لگا کر وقت کے ساتھ ساتھ اڑ جاتی ہیں۔ اچھا ذرا دیکھیے گا، آج آئینے میں جا کر اپنے آپ کو ذرا غور سے دیکھیے گا، جب آپ کی شادی ہوئی تھی تب آپ کی شکل کیسی تھی، اور اب آپ کی شکل کیسی ہے؟ تب آپ کیسے دکھتے تھے اور اب آپ کیسے دکھتے ہیں؟ فرق میں بتا دیتا ہوں، تب آپ لڑکے دکھتے تھے، اب آپ شوہر دکھتے ہیں۔ شوہروں کے چہرے ویسے ہی ہونے چاہیے۔ اور میں آپ کو بتا دوں کہ اگر ہر مرد واقعی شوہر بن جائے تو پھر وہ بہت سی بیگانہ عورتوں سے بچا رہے۔ وہ عورتیں جن کے بارے میں انسان کی کتاب میں لکھا ہے کہ ان کے لبوں سے شہد ٹپکتا ہے، وہ گہری خندق ہیں اور جو اس میں گرتا ہے پھر وہ کبھی نہیں اٹھتا۔ تو کیا کریں؟ پیدائش کی کتاب کے دوسرے باب کو ذہن میں رکھیں، اس سیکرمنٹ کو ذہن میں رکھیں، اور ایک دوسرے کے لیے ایکسائٹڈ ہو گئے۔ اور اگر آپ ایکسائٹمنٹ کو پہلی شادی کے موقع پر دیکھنا چاہتے ہیں تو پھر آپ پیدائش کی کتاب کے دوسرے باب میں آ جائیں۔ خدا جب حوا کو آدم کے پاس لایا، اس کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں، وہ کہہ رہا ہے او مائی گاڈ، اے میرے خدایا، یہ تو میری ہڈیوں میں سے ہڈی اور میرے گوشت میں سے گوشت ہے۔ اصل میں کیا کہہ رہا ہے؟ خدا یہ کوئی اور نہیں ہے، ارے یہ تو میں ہوں جسے تو بنا کر میرے ہی سامنے لے آیا۔ آدم مٹی سے بنایا گیا ہے، عورت اس مٹی میں سے بنائی گئی ہے جو یہاں دکھائی دیتی۔ یہ فرق ہے بھائی۔ عورت کے لیے عدن میں مٹی کم نہیں تھی، خدا اس کو بھی الگ مٹی سے بنا سکتا تھا، لیکن اگر الگ مٹی سے بناتا تو پھر ان کے درمیان چاشنی، پیار، رفاقت، شراکت، قربت اور کھچ کیسے رہتی؟ اب مجھے کہنے دیں عاشق ہیں ایک بڑی بات، جب شادی کا یہ پیٹرن ہوگا نا تو پھر ہاتھ پکڑ کر دنیا کا کوئی بھی جوڑا کہے گا تجھ میں رب دکھتا ہے۔ مجھے کہنے دیں یہ بات، جب شادی کا یہ پیٹرن ہوگا جسے ابھی میں نے خدا کے کلام میں سے کھولا ہے، تو پھر ہر جوڑا یہ کہہ رہا ہوگا تجھ میں رب دکھتا ہے۔ اور بیوی اپنے شوہر کو کہہ رہی ہوگی مجھے تجھ میں رب دکھتا ہے۔ تجھ میں مجھے رب دکھتا ہے، کیونکہ ہم دونوں خدا کی صورت اور اس کی شبیہ پر ہیں۔
तो फिर आइए आज 3 बातें अपने साथ लेकर जाएं। अगर आप अपनी शादी से उकताए हुए हैं और ये महसूस करते हैं कि ये आपका गलत फैसला था, तो आज मेहरबानी से अपनी सोच को बदलें। बीवी खुदा की तरफ से आपके लिए तोहफा है, इनाम है, इसकी इज्जत और कदर करें। दूसरी बात, सर माने भाई, सर माने से। और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि अगर आज की बेटियां अपने शौहरों को सर मान लें, तलाक की शरह धड़म से नीचे आ गए। और तीसरी बात, आपको एक दूसरे में रब नजर आना चाहिए। वाकई ये किसी मूवी का सॉन्ग नहीं है भाई, वाकई आपको रब नजर आना चाहिए एक दूसरे में, इसलिए कि आप खुदा की सूरत और खुदा की छवि पर हैं। और अगर आप किसी भी तौर पर एक दूसरे को इग्नोर करते हैं, आप लड़ते झगड़ते हैं, आप एक दूसरे के बारे में बुरा भला कहते हैं, आप ये कहते हैं कि ये मेरा गलत इंतखाब था, तो फिर आप खुदा को कसूरवार ठहराते हैं, क्योंकि ये इसी की पसली है। और इसकी ये पसली जिसे खुदा ने खुद बनाया है, वो कैसे गलत हो सकती है। तो आखिरी बात, इंतखाब का मौका तो खुदा को देना, फिर आप इंतखाब ना करें। इंतखाब का मौका खुदा को दें। और मैं आपको यकीन दिलाता हूं, अगर आप इंतखाब का मौका खुदा को देंगे, जब वो आपकी हवा को आपके पास ले आएगा, तो फिर बाइबल मुकद्दस में पहले बाब की 31वीं आयत की आयत, और वो बात पूरी होगी। खुदा ने दोनों को देखा और कहा, बहुत अच्छा है। इसका मतलब क्या है? ये परफेक्ट मैच है, परफेक्ट, नगीने की तरह टच करके ये परफेक्ट मैच है। और खुदा का मैच जो है वो कभी गलत नहीं हो सकता। आइए दुआ करें। तेरे खुदा, हम तेरे कलाम की गहरी और प्यारी बातों के लिए हम तेरा शुक्र, तेरे नाम की तारीफ करते हैं और तेरी मिन्नत करते हैं कि अज़दवाज को लेकर दुनिया में जो करप्शन है, बख्श दे कि तेरे बेटे यीशु के नाम से जाती रहे। लोग शादी की मकसदियत को समझें, इसकी अहमियत को समझें, इसमें पाई जाने वाली रूहानियत को समझें, खुदा के प्लान को समझें और फिर उसी के मुताबिक अमल करने वाले बन जाएं। खुदावंद तू हमें ऐसा करने का भारी फजल बख्श दे, रिश्तों को निभाने का, रिश्तों की पालना करने का भारी फजल बख्श दे, यीशु के नाम में आमीन। आए हमारे बाप जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी से आसमान पर पूरी होती है, जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हमने अपने कसूरवारों को मुआफ किया, तू भी हमारे कसूर हमें मुआफ कर। हमें आजमाइश में न ला, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे हैं। आमीन।